Welcome back, everybody. In our last video, we covered about sign convention and convex mirror, how we have to measure distances, and we measured two type of distances. One were one of which was regarding parallel to principal axis, and second was perpendicular to principal axis. And we also saw that which distances we have to take as positive and which distances we have to take as a negative. Now in this video we will take another step further, where we will see that how to use those distances. We have measured some distances. First we will assign them some variables, like if you have already studied equation of motion in ninth class, where we have assigned some names to variables, like for initial velocity we have assigned u, for final velocity we have assigned v, for acceleration we use a. So like this we will assign some names to them, and after that we will create an equation, like in the for equation of motion we had v is equal to u plus at, and s is equal to ut plus half at square. We will also do that. So before going any further, I will request you to like this video, share this video, and subscribe to my channel, because I keep on producing such type of content. And when you subscribe, like this, comment this out, comment on my video, then it acts like a motivation that yes, there is a need of such type of content and it is beneficial for people. So I should keep on making content like this. So I will urge you to share this video as much as possible to the people whom do you think can be beneficial or can get some information or come some value from this video. So I will ask you to subscribe, share, and comment. And with this, we will go further, and we will start our today's topic, that is mirror formula. So our today's topic is mirror formula. Now up to now, अभी तक, you know that suppose we write equation of motion. Our first equation of motion, v is equal to u plus at. Here v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, and t is time. So अब हम सिमिलर टाइप का कंसेप्ट मिरर फॉर्मूला में यूज करते हैं, जहां पे हम इन दो वेरिएबल्स को एज इट इज बोरो कर लेते हैं. हम v को बोरो करते हैं और u को बोरो करते हैं. v था मोशन के केस में फाइनल वेलोसिटी था, और यहाँ पे हम जब जो हम इमेजेस की बात कर रहे हैं तो इस फील्ड को ऑप्टिक्स बोला जाता है. तो ऑप्टिक्स में जो v होता है, जब भी आप लाइट की कोई स्टडी करोगे उसको, वो ऑप्टिक्स के अंडर आती है नॉर्मली. तो यहाँ पे v जो होता है उसको बोल दिया जाता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर. जो u होगा वो स्टार्टिंग था, इनिशियल था, तो पहले आपके पास ऑब्जेक्ट आता है. सो u हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर. जैसे जब भी आपके पास मोशन होगा तो स्टार्टिंग में आपके पास स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 हो सकती है,
जब आपके पास स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी तब आप फाइनल वेलोसिटी की तरफ जाते हो। तो u से स्टार्ट होता है और आप v की तरफ जाते हो मोशन में। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, u होता है जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मिरर से डिस्टेंस होगा, उसको u बोला जाता है। और जब आपके पास इमेज बन जाती है तो उसका जो मिरर से डिस्टेंस होगा उसको v बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जो होती है f। ये होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है उसको आप f से डिनोट करते हो। तो अब आता है इनसे फॉर्मूला बनाना। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है, जो हमारा मिरर फॉर्मूला है या मिरर रिलेशन है, इट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट 1 बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल प्लस 1 बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब हम आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं दैट कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव है, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव है। हम आपको एक बार फिर से वो जो हमने डायग्राम बनाया था उसका एक डेमो देते हैं सो दैट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे, और फिर हम आपको उन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करके दिखाएंगे कि किस केस में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। सो जैसे ये हमारे पास कनकेव मिरर के लिए हमने ये जो डायग्राम लिया है, इसके केस में जो कनकेव मिरर में ये होती है लेफ्ट साइड, दिस इज आवर लेफ्ट साइड एंड दिस इज आवर राइट साइड। जो लेफ्ट साइड होती है इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव साइड। जो राइट साइड होती है इसको बोला जाता है पॉजिटिव साइड, और दोनों मिरर के केस में ऐसा ही होता है। और इसको नेगेटिव साइड क्यों बोला जाता है, बिकॉज इस साइड से लाइट आती है। जो लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड से हमेशा क्या आएगी, लाइट इनकमिंग। यहां से लाइट आएगी, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो भी लेफ्ट साइड में ही होगा। और यहां पे जो भी डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे एक्स डैश एक्स, यानी कि एक्स एक्स डैश आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके पैरेलल जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे लेफ्ट साइड में, वो सभी के सभी नेगेटिव होंगे। तो अगर यहाँ पे जैसे हम सपोज करें, अगर हमारा ए बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये मिरर के लेफ्ट साइड में रखा है, और इसका डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से यानी कि एक्स एक्स के पैरेलल पोल तक इसका डिस्टेंस, यानी कि एक्स एक्स के पैरेलल पोल तक इसका डिस्टेंस होगा बीपी। और ये बीपी लेफ्ट साइड में है, तो यहां पे इसका जो, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। तो यहां पे जो u है वो किसके इक्वल होगा, u इक्वल होगा b से लेके p तक का डिस्टेंस, यानी कि bp। और इसको यहां पे क्या लिया जाएगा, ये नेगेटिव होगा। जब नंबर आप इसके डालोगे,
अभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बीपी नेगेटिव नहीं है जब आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर दोगे। सपोज बीपी इज 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तब आप इसको ऐसे लिखोगे दैट यू इज -5 सेंटीमीटर। जब आप इसके लिए सिंबल यूज कर रहे हो, जब भी आप किसी चीज के लिए सिंबल यूज करते हो तो आप उसको नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लिखते, उसको आप एज इट इज उसको सिंबल की फॉर्म में ही यूज करते हो। जब भी आप उसको मैग्नीट्यूड दोगे, यहाँ पे हमने जो 5 है इसको नंबर दे दिया, एक मैग्नीट्यूड दे दिया, जब भी आप उसको मैग्नीट्यूड देते हो तब आप उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हो। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े तो हमने जो हमारा फॉर्मूला था उसमें 3 वेरिएबल्स थे। हमारे पास u था, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, फिर v है हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है, और फिर थर्ड है f जो फोकल लेंथ है। अब तो हम v की बात करते हैं। तो जो v होगा, यहां पे v है इमेज का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। और ये वेरिएबल एज इट इज रहते हैं, कनकेव मिरर के लिए भी कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम रहते हैं, बस साइन में डिफरेंस आ सकता है कि इमेज कहां बन रही है। मोस्टली इमेज के साइन में ही डिफरेंस आता है, बिकॉज जो आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, उसको आप ऑलवेज लेफ्ट साइड में रखोगे तो उसका डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में ही मेजर होगा, तो वो ऑलवेज जो आपका यू है वो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। जो आपका v है यानी कि इमेज का डिस्टेंस है, डिपेंडिंग अपॉन कि इमेज अगर रियल है तो वो मिरर के लेफ्ट साइड बनती है, अगर वर्चुअल है तो मिरर के राइट साइड बनती है। तो अगर जो इमेज है वो मिरर के लेफ्ट साइड बन रही है, मींस नेगेटिव साइड बन रही है, तो इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर इमेज वर्चुअल है मींस तो वो कहां पे बनेगी, राइट साइड बनेगी, और अगर वो राइट साइड बन रही है तो राइट साइड तो पॉजिटिव साइड मानी जाती है। तो अगर वो पॉजिटिव साइड बन रही है तो जो v की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस केस में जो इमेज है वो लेफ्ट साइड बन रही है, और उसका डिस्टेंस कितना है मिरर से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दैट इज b डैश p। सो जो v हो जाएगा दैट इज b डैश p, और ये भी नेगेटिव होगा, और हम इसको कर लेते हैं सपोज b डैश p है 2 सेंटीमीटर, तो जो v हो जाएगा दैट विल बी -2 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद आते हैं हम फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ क्या होती है, एफ होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और फोकल लेंथ आप कैसे निकालते हो कि आप क्या करते हो, किसी भी मिरर के ऊपर इन्फानाइट से लाइट लेके आते हो। तो हमने आपको जब हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़ाए थे तो हमने फोकल लेंथ का केस को स्टडी किया था। हम आपको कन्वेक्स के लिए दिखाते हैं, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के दोनों के लिए भी। तो ये केस था, जब भी लाइट इन्फानाइट से आती है, इन्फानाइट डिस्टेंस से आती है, तो वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो वो जिस पॉइंट पे फोकस होती है उसको फोकस पॉइंट बोला जाता है या फोकस बोला जाता है, और उस पॉइंट का पोल से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पोल से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। जो हमारा ये फिगर है, इस फिगर में फोकल लेंथ होगा एफ पी या पी एफ, आप कुछ भी बोल सकते हो, उससे डिफरेंस नहीं आने वाला। तो इसके केस में एफ पी एफ पी एफ फोकल लेंथ है। और आप कैसे निकाल सकते हो फोकल लेंथ, कि आपको अब जो मिरर है, मिरर के ऊपर आप इन्फानाइट डिस्टेंस से कोई लाइट लेके आइए, इन्फानाइट से जो लाइट आएगी वो बिल्कुल पैरेलल होगी, और जब भी कोई लाइट पैरेलल हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जब वो मिरर के स्ट्राइक करती है तो वो जिस पॉइंट पे जाके, किस पॉइंट को क्रॉस करेगी, ऑलवेज वो फोकस को जरूर क्रॉस करेगी। तो वो जहां पे जाके फोकस पे मीट करती है तो उसको फोकस पॉइंट बोला जाता है, और उसका डिस्टेंस एफ पी को फोकल लेंथ बोला जाता है। सेम केस हमारे पास कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए भी है।
सो दिस इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में भी हम इन्फानाइट से लाइट लेके आए हैं, ये पैरेलल लाइट है, और ये हमें अपीयर होता है क्योंकि इसके केस में वर्चुअल इमेज बनती है, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई एक पॉइंट है जहां से लाइट हमारे पास हमारी आंखों में आ रही है, तो हमें वहां पे एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, अपीयर होता है, रियलिटी में वहां पे नहीं होता, हमें अपीयर होता है। तो उस केस में इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज पी एफ, फोकस पॉइंट इज एफ, और ये इसके राइट साइड में होता है। तो राइट साइड वाली चीजें पॉजिटिव होती हैं, तो जो कन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ इस साइड होती है लेफ्ट साइड में, तो वो नेगेटिव होती है। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, टुडेज टॉपिक, यहां पे जो फोकल लेंथ है मिरर की वो हो जाएगी, सपोज कीजिए जो आपका फोकस पॉइंट है वो यहां पे है और उसको आप बोल देते हो सी, तो फोकल लेंथ हो जाएगी एफ इज सी पी, और ये भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है। ये देखिए ये मिरर के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होगी। और अगर हम इसके लिए नंबर लें तो सपोज जो सीपी है, सीपी को अगर आप 1 सेंटीमीटर ले लेते हो तो जो आपका फोकल लेंथ है दैट विल बी -1 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हमने जो ऊपर केसेस पढ़े हैं सभी के सभी मिरर्स के लिए, हम आपको उन केसेस में जाके बताते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। ओके, एंड यहां पे इससे पहले हम एक और टर्म कर लेते हैं दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसको बोला जाता है एच ओ, ये होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये इसको पॉजिटिव माना जाता है। यहां पे देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि एक्स एक्स डैश इसके ऊपर है तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा और इसको एच ओ बोला जाता है। और फिर आता है एच आई, ये होती है हाइट ऑफ इमेज। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको नेगेटिव माना जाएगा, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। तो इस केस में जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और नॉर्मली जब भी रियल इमेज बनती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो उसकी हाइट नेगेटिव ही रहती है। और फिर जो टर्म आती है दैट इज मैग्निफिकेशन, उसको एम से डिनोट करते हैं। और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज यानी कि एच आई बाय एच ओ। और अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करें, बट अभी आपके पास वो मीन्स उसका डेरिवेशन नहीं आएगा, तो आप इसको इस सेम फॉर्मूला को -v/u से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आपको जाके जो सभी केसेस हमने स्टडी किए हैं अब तक उन सभी में ये सभी वैल्यूज बताते हैं कि कहाँ पे u पॉजिटिव है, कहाँ पे v पॉजिटिव है, कहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कहाँ पे इमेज हाइट एच ओ पॉजिटिव और कहाँ पे एच आई पॉजिटिव है। सो लेट्स गो, हम अपने जो हमने अब तक सभी स्टडी किए हैं प्रीवियस एग्जांपल्स हम उन पे चलते हैं। सो हमने पहले कनकेव मिरर से स्टार्ट किया था और हम कनकेव मिरर का अब यहाँ पे सभी चीजें स्टडी करेंगे। तो हम राइट डाउन कर लेते हैं कि हम किस किस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि u, फिर आता है इमेज का डिस्टेंस यानी कि v, उसके बाद आता है फोकल लेंथ, उसके बाद आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है हाइट ऑफ इमेज। हम ये सभी चीजें आपको बताएंगे कि कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। इनको हम कॉपी कर लेते हैं सो दैट हमें बार बार ना लिखना पड़े।
सो हमारा पहला केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फानाइट पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे है तो किसमें, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड को क्या माना जाता है, नेगेटिव साइड, राइट साइड को पॉजिटिव साइड। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो यू भी नेगेटिव होगा। जो इमेज बनी वो फोकल पॉइंट पे बनी बट लेफ्ट साइड बनी तो ये भी नेगेटिव रहेगी। फोकल लेंथ है दैट इज पी एफ और वो भी मिरर के लेफ्ट साइड में है तो ये भी नेगेटिव रहेगी। अब आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ओ। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और मोस्टली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही माना जाता है तो दैट इज विल बी पॉजिटिव। जो इमेज बनती है इस केस में वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है क्योंकि रियल इमेज होती है। तो वो आपको दिखने में कुछ ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे डाउनवर्ड होगी। मीन्स यहाँ पे जब फोकल पे इमेज बनी है वो कुछ ऐसे बनेगी तो नीचे की तरफ है तो इमेज यहाँ पे डाउनवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस से तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा, नंबर को नेगेटिव लिया जाएगा। हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं कि यू की जो वैल्यू होगी आप उसके सामने माइनस लगाओगे, वी की जो वैल्यू होगी उसके सामने माइनस लगाओगे। सेकंड केस पे आते हैं। इस केस के लिए चीजें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड है, राइट साइड पॉजिटिव साइड है। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो नेगेटिव। जो इमेज बनी वो भी लेफ्ट में बनी तो नेगेटिव। फोकल लेंथ कनकेव मिरर है, ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगी। इमेज हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव रहेगी। आगे बढ़ते हैं, फिर से सेम वैल्यूज। लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड, राइट साइड पॉजिटिव साइड। तो फिर से मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड में ही होगा। तो ये डिस्टेंस नेगेटिव। इमेज लेफ्ट में बन रही है तो नेगेटिव। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव रहेगी क्योंकि ऑलवेज लेफ्ट साइड में ही रहेगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव। जो इमेज है वो नीचे की तरफ बनी तो नेगेटिव। तभी आप देखोगे कि हमने जो पहले 3 केस स्टडी किए तीनों के तीनों केस एग्जैक्ट कॉपी हैं साइंस के मामले में एक दूसरे के। यहां पे आते हैं, यहां पे भी कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, एज इट इज रहेगा। तो जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे भी नेगेटिव रहती है हमेशा, राइट साइड पॉजिटिव रहती है। तो ऑब्जेक्ट अभी भी लेफ्ट में है, मिरर के लेफ्ट में है तो नेगेटिव। जो इमेज बन रही है वो मिरर के लेफ्ट में बन रही है, ये फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे बन रही है, अगर मिरर के लेफ्ट में है तो नेगेटिव। फोकल लेंथ कनकेव मिरर नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है हाइट तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हाइट नेगेटिव। नेक्स्ट केस पे आते हैं। इस केस में जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, लेफ्ट नेगेटिव होती है, राइट पॉजिटिव होती है। लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव। इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे कहीं पे बट बनेगी लेफ्ट में तो नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव। और जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी बट बनेगी उल्टी ही, रिवर्स ही बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही बनेगी सो नेगेटिव। कनकेव मिरर का लास्ट केस जहां पे चीजें थोड़ी बदल जाती हैं, सिर्फ यही केस है जहां पे वैल्यूज बदलती है। तो ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट में है तो यू नेगेटिव रहेगा।
जो इमेज है वो बनी, वर्चुअल इमेज बनी है और मिरर के राइट साइड में बनी है, और राइट साइड पॉजिटिव साइड होती है, तो यहाँ पे v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। फोकल लेंथ फिर से लेफ्ट में है, सो नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव रहेगा, और जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो ऊपर बन रही है, तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एक तो v की वैल्यू में चेंज आता है जो वेरिएबल है, एक तो इसमें चेंज आया और एक हाइट ऑफ इमेज में चेंज आया, बाकी तीन चीजें एज इट इज रहती है। तो ये तो हो गया कनकेव मिरर के लिए। अब हम कन्वेक्स मिरर के लिए भी केसेस को देख लेते हैं। सो कन्वेक्स मिरर के लिए हम इनको यहां पे रख के करते हैं, सो दैट प्रीवियसली रिटन हमारा ओवर रिटन ना हो। तो यहाँ पे जो u है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। अब देखिए इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है राइट साइड में, क्योंकि वर्चुअल इमेज है तो राइट साइड में बन रही है। कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। इसका फोकस राइट साइड में होता है। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। कन्वेक्स का मिरर का फोकस राइट साइड में होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में होता है, तो इसका फोकस पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मानेंगे क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही माना जाता है तो पॉजिटिव रहेगा। हाइट ऑफ इमेज, जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, तो सीधी अगर तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगी। और जो लास्ट केस है, अब हम लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। तो जो लेफ्ट साइड है हमारी, u ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, इमेज राइट साइड में बन रही है तो पॉजिटिव, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की राइट साइड में होती है तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज, जो प्रिंसिपल एक्स इमेज ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, और जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, वर्चुअल है, तो पॉजिटिव। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पे u नेगेटिव है, कनकेव कन्वेक्स मिरर के केस में ओनली u नेगेटिव है, बाकी की सब चीजें पॉजिटिव रहती है। सो ये सभी के लिए सिंबल्स थे कि कौन सी वैल्यू कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी। अब हम आपको जो मैग्निफिकेशन है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, उसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन के, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन करके देखेंगे, दो एक दो, सो दैट आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आए कि आप वैल्यूज को पुट कैसे करोगे। हम इसके लिए क्वेश्चन सीरीज अलग से करेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन सीरीज जो हम चैप्टर खत्म होने के बाद करते हैं, तो वहां पे तो हम कवर करेंगे ही। यहाँ पे आपको जस्ट एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस को आपको वैल्यू पुट करके और सोल्व करके दिखाएंगे। सो पहले हम मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। हमने इसको स्टडी किया था, और मैग्निफिकेशन क्या है, HI/HO। तो अब हम यहाँ पे केसेस देखते हैं। पहला केस क्या है, व्हेन इमेज इज रियल। जब इमेज रियल हो, तो अगर इमेज रियल है तो मतलब क्या होगी, वो रियल इमेज क्या होती है ऑलवेज,
रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। अगर वो इन्वर्टेड हो गई तो इसका मीनिंग क्या होगा? इन्वर्टेड होने का मीनिंग होगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ओके। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसको तो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज ही पॉजिटिव रहता है। तो इन दोनों से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? जो मैग्निफिकेशन है एम, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट क्या है इस केस में? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? इन नेट नेगेटिव। तो अगर आपके पास मैग्निफिकेशन क्या है? नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है? इमेज इज रियल। तो आप यहां से रिवर्स लगा सकते हो, दैट इफ m इज नेगेटिव वैल्यू, अगर m नेगेटिव वैल्यू में है, देन इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है। और ये मोस्टली किसके केस में होगा? मोस्टली इन केस ऑफ कनकेव मिरर, क्योंकि वहीं पे ये केस होता है। अब आ जाते हैं जब व्हेन इमेज इज वर्चुअल। तो अगर इमेज वर्चुअल है तो इसका मतलब क्या होता है? इमेज हैज सेम ओरिएंटेशन एज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीनिंग, अब ऑब्जेक्ट की जो ओरिएंटेशन है वही इमेज की ओरिएंटेशन होती है, और ऑब्जेक्ट को ऑलवेज आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हो। तो जो एच ऑब्जेक्ट होगा वो तो पॉजिटिव ही रहता है ऑलवेज। तो इमेज की भी ओरिएंटेशन यही रहेगी। इसका मीनिंग क्या है? एच आई भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर आप यहां से आप मैग्निफिकेशन निकालोगे, दैट इज इमेज बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। मीन्स इफ m has positive value, then image is virtual and erect, means straight, ऊपर है, ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से। सो ये आप बेसिक कंसिडरेशन निकाल सकते हो, बेसिक चीजें निकाल सकते हो किसके हेल्प से? m की हेल्प से, मैग्निफिकेशन की हेल्प से। कि अगर आपको m की वैल्यू गिवन है और वो नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी। अभी हम आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स दिखाते हैं करके, सॉल्व करके, सो दैट आपको एक आइडिया डेवलप हो कि जो मिरर फॉर्मूला है जो हमने अब तक डिस्कस किया, दिस वन, इसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। मीन्स अगर आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं इसके बेसिस पे तो आप इसको अप्लाई कैसे करोगे। सो आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से? मिरर फॉर्मूला की हेल्प से। और जो मिरर फॉर्मूला है, पहले मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो मिरर फॉर्मूला है दैट इज 1/v, यानी कि 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1/u, मीन्स 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू 1/f, मीन्स 1 फोकल लेंथ।
और इसके अलावा जो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/HO, और इसके लिए एक और रिलेशन होता है दैट इज -V/U। और एक और रिलेशन जो हम पहले कवर कर चुके हैं, दैट जो फोकल लेंथ होता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो हमारे पास ये दो अलग से और रिलेशन है जो हम यूज कर सकते हैं। सो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का मीनिंग है इस टाइप का मिरर है, ठीक है। तो हम ये सेटअप में डील करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 3 मीटर। अब जो कन्वेक्स मिरर है इसका रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है कुछ ऐसे। सो और इसका जो पोल है वो यहाँ पे होगा। तो ये डिस्टेंस पोल से ये डिस्टेंस कितना गिवन है, 3 मीटर। हम राइट भी कर लेते हैं दैट R इज 3 मीटर। आगे गिवन है इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है कि लेफ्ट में राइट में, बट जब हमने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को ऑलवेज कहां पे लेना है, लेफ्ट में लेना है। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा और आपको उसकी शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको शेप को एज इट इज कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपल एक डमी ऑब्जेक्ट लेंगे जैसे हम लेते हैं। तो दिस इज आवर बस, ये हमारी बस हो जाएगी। और जो ये डिस्टेंस है दिस इज 5 मीटर। ओके, तो हमें बताना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब हमें बताना है v की वैल्यू, नेचर मतलब कि हमें बताना है कि रियल है या वर्चुअल है, इन दोनों में से। और साइज बताना है यानी कि हाइट ऑफ इमेज बताना है। अब देखो, अगर आपने थोड़ा प्रीवियस क्लासेस में ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो हम नेचर तो यहीं से पता लग गया कि वर्चुअल इमेज बनेगा। अब अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो जो HI है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज सीधा बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। तो ऊपर बनती है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको कुछ चेक्स मिल गए कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे अगर आपकी HI की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मीन्स आपने कहीं पे मिस्टेक की है, उसको आपको करेक्ट करने की जरूरत है। आप ऐसे चेक्स कर सकते हो। अब देखिए ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है, राइट साइड पॉजिटिव होती है। तो जो U है यहाँ पे लेफ्ट में है, तो जो U है वो लेफ्ट में है, दैट सो मीन्स ये 5 मीटर है तो ये हो जाएगा -5 मीटर। ओके, अब हम फोकल लेंथ निकालते हैं। जो फोकल लेंथ होती है दैट इज R/2। R इज 3 मीटर, सो 3/2। और देखिए जो फोकल लेंथ है यानी कि R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की साइड है, राइट साइड में, तो पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो अगर आप ये रिलेशन देखो मिरर फॉर्मूला, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल है V, U, F। अगर हमें सोल्व करना है तो हमें इसमें से 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारे पास U की वैल्यू है, हमारे पास F की वैल्यू है, तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए, तो हम रिलेशन को यूज कर सकते हैं। सो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। जब आप इसको सॉल्व करते हो 1/V एज इट इज रहेगा, हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है। U की वैल्यू है -5, तो 1/-1/5 इक्वल टू F। F पॉजिटिव है यहाँ पे, तो 1/3/2। फर्दर सोल्व करते हैं इसको, 1/V -1/5, और ये आपका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। सो 1/V की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2/3 प्लस 1/5। आप एलसीएम लोगे 15, सो 10 प्लस 3, सो 13/15 इज इक्वल टू 1/V। और इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो V की वैल्यू आएगी 15/13। ये हमारे पास V आ गया।
ठीक है, तो हमने v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? hi की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब hi की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं दैट, हमें ये पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? hi बाय ho, और यही होता है किसके इक्वल? माइनस v बाय u के इक्वल। सो अगर हम सिर्फ इतना हिस्सा यूज करें तो हम यहां पे राइट डाउन कर सकते हैं दैट hi बाय ho इज इक्वल टू नेगेटिव। अब जो v है, v की वैल्यू क्या है? दिस इज, और ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आई है हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव आई है मीन्स इमेज कहां पे बन रही है? अगर पॉजिटिव आई है तो इमेज बन रही है राइट साइड में, और वही हमने आपको बताया था कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, बिकॉज किस टाइप का मिरर है? कन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है और पॉजिटिव होती है, ऊपर बनती है। तो देखिए, तो हमारा वहां से जो वहां से कंक्लूजन निकाला था कि वर्चुअल इमेज है तो राइट साइड में ही बनेगी, तो वो हमारा ठीक आ रहा है क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो हमने v की वैल्यू पुट कर दी 15/13। अब जो u है, u की वैल्यू है हमारे पास -5। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -5। ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। सो हमारे पास आएगा hi बाय ho इज इक्वल टू 15/13 इंटू 5। सो दिस विल बी 3 implies hi बाय ho इज इक्वल टू 3/13। और जब आप इसको पॉइंट में सॉल्व करोगे तो इमेज बाय ऑब्जेक्ट विल बी 0.23, और जो इमेज होगी दैट इज 0.23 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 100 है तो इमेज की हाइट 23 होगी। मीन्स इमेज छोटी है साइज में, किससे? ऑब्जेक्ट से। और देखिए, और यही वैल्यू किसकी होती है? मैग्निफिकेशन की होती है। अगर हम ये वैल्यू को जब हमने कैलकुलेट किया दैट कम्स आउट टू बी 0.23, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? 0.23। और हमने आपको प्रीवियस जो हम कवर कर रहे थे उसमें बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इफ m इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मीन्स वर्चुअल है और इरेक्ट मीन्स सीधी बनी है। तो ऐसे आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करके फर्दर कंक्लूजन्स निकाल सकते हो इजिली। इसका हम एक और न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं सो दैट आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे गिवन है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है 4 सेंटीमीटर। मीन्स h ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो मिरर कुछ ऐसा होता है, ये कनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट को सपोज यहाँ पे रखा गया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो ये डिस्टेंस है दिस इज 25 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, और लेफ्ट साइड की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव होती है। एच तो पॉजिटिव हो रहेगी बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहती है। तो यहाँ पे जो u है यानी कि 25 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, इट विल बी -25 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी यहाँ पे आती है, लेफ्ट साइड में आती है, तो ये भी नेगेटिव ही रहेगी। तो हमें ये बताना है एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू इमेज ए शार्प इमेज। तो यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन प्लेस करनी है। सपोज ये स्क्रीन है,
तो स्क्रीन के ऊपर इमेज बनेगी, मीन्स आप एक लगा लीजिए एक टाइप से पर्दा है एक, जिसके ऊपर इमेज बनेगी और जो आपको दिखाई देगी। तो हमें निकालना क्या है, ये इमेज यहाँ पे भी बन सकती है और यहाँ पे बन सकती है, तो हमें ये पता करना है कि कहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो v है हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमारे पास इसमें से दो वैल्यू है, हमारे पास f की वैल्यू है, हमारे पास u की वैल्यू है, तो हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 1/v, जो u वो नेगेटिव है तो -1/25 इक्वल टू जो f है वो भी नेगेटिव होगा तो -1/15। सो 1/v इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 75, सो इट विल बी -6, दिस विल बी 3। सो 1/v की वैल्यू आएगी -3/75, और इसको आप कट कर दोगे तो v आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 5 आएगा। 15 5 75 होता है, 6 नहीं होता। सो दिस विल बी 2, दिस इज 2, और ये सभी चेंज हो जाएगा। ये होगा -75/2 -37.5 सेंटीमीटर। ये आ गई v की वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है, इमेज उससे ज़्यादा दूर बन रही है तो कहीं यहाँ पे बन रही है, और ये डिस्टेंस है 37.5। बिकॉज ये नेगेटिव है तो इमेज भी लेफ्ट साइड में बन रही है। ओके, हम यहाँ तक सॉल्व कर पाए। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो रिलेशन और हैं, हमारे पास दो रिलेशन होते हैं। एक और होता है f इज r/2, और एक होता है m इज इक्वल टू इमेज बाय ऑब्जेक्ट माइनस v/u। तो हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं निकालना, तो इसका यूज नहीं करेंगे हम, बट हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि इमेज का साइज कितना है। नेचर तो हमने निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे जो v है वो नेगेटिव आया है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, और लेफ्ट साइड की इमेज ऑलवेज क्या होती है, रियल होती है। तो जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। तो नेचर हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें हम साइज कैलकुलेट करना है। और साइज के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल है। अगर आप ये इसको देखोगे, यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमें कम से कम 3 वेरिएबल चाहिए ताकि हम सोल्व कर सके। कोई भी आपके पास इक्वेशन हो, अगर उसके अंदर n वेरिएबल है तो आपको n माइनस वैल्यूज चाहिए सोल्व करने के लिए। अगर आपके पास इक्वेशन में 4 वेरिएबल है तो आपको 3 वैल्यू चाहिए सोल्व करने के लिए। 5 वेरिएबल है तो 4 वैल्यू चाहिए सोल्व करने के लिए। तो हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है, u की वैल्यू हमारे पास है, ho हमारे पास है, तो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो हम 4th वैल्यू निकाल सकते हैं। सो सॉल्व करते हैं। यहाँ से अब अगर आप एच आई निकालना चाहें तो एच आई की वैल्यू आ जाएगी -v/u इंटू एच ओ। सो एच आई इज माइनस एज इट इज रहेगा, जो v है वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो -37.5, जो u है वो भी ऑलरेडी नेगेटिव है, u इज 25, -25, सो -25। और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है 4, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4। जब आप इन सभी को सॉल्व करोगे तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब कैलकुलेट करोगे तो ये 4 से ज़्यादा ही आएगा, बिकॉज ऊपर 37 है और नीचे 25 है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये आंसर आएगा 6।
और साथ में नेगेटिव है तो ये आएगा -6 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, मींस इमेज नीचे की तरफ बनेगी, जो कि हमने बाय डिफॉल्ट आपको बताया था कि कनकेव मिरर है तो इमेज नीचे की तरफ ही बनती है, क्योंकि रियल इमेज है तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। तो वो पॉइंट यहाँ से प्रूव हो जाता है। और अगर आपको यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना हो तो आप मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन क्या है, HI/HO। HI की वैल्यू हमारे पास -6 है, HO की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -3/2 और -1.5। और जब भी नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है तो इसका मीनिंग होता है इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। सो ये हमने दो बेसिक न्यूमेरिकल स्टडी किए, सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि कैसे आपको जो मिरर फॉर्मूला है वो यूज करना है जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन होगा। एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम फर्दर स्टडी करेंगे रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब तक हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी किया, अब हम रिफ्रैक्शन के टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। एंड एज यूजुअल, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ हेल्प मिली हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो, और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, और बहुत से लोग हैं जिनको हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन उनको अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज the more you subscribe, the more we feel motivated, and we also get a feedback that yes, there are people who need such type of explanation of such type of content, and more the feedback comes, more we will be motivated to make such type of videos. So I will urge you ki please share this video. If you have any doubt, comment on video and subscribe to my channel. At last, thanks for watching. We will be back in our next video.